have discussed about seizures. Seizures हमारा complete हो गया था. Today we will be dealing with Parkinson's disease. तो basically Parkinson's आपका already psychiatry में हो गया है, but फिर भी आज हम revision करेंगे Parkinson's का. तो Parkinson's disease is a chronic progressive disease condition of the nervous system which is characterized by cardiac features of rigidity, bradykinesia, tremors and postural abnormalities. तो बेसिकली जो हमारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, जो हमने मूवमेंट में पढ़े थे, मूवमेंट डिसऑर्डर्स में पढ़े थे, पार्किंसंस डिजीज पढ़ा था हम लोगों ने, एल्जाइमर्स डिजीज पढ़ा था. तो इनके अंदर क्या होता है ना कि जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, मूवमेंट जो है, हमारे हैंड मूवमेंट हो गए, फीट मूवमेंट हो गया, बॉडी का मूविंग फॉरवर्ड हो गया, तो जितने सारे मूवमेंट्स हैं उनमें पार्किंसंस में और एल्जाइमर्स में उनमें ब्रेडिकाइनेसिस हो जाता है या फिर इनेबिलिटी हो जाती है. पेशेंट वोंट बी एबल टू मूव प्रॉपर्ली. सो पार्किंसंस डिजीज इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज. तो बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम पढ़ना, न्यूरोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था, तो तभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी नर्वस सिस्टम की डिजीज कंडीशंस है, एक्सेप्ट फॉर द इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, वो उनको छोड़कर जितने भी मोस्ट ऑफ द टाइम डिजीज कंडीशंस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं और डीजनरेटिव होते हैं. डीजनरेटिव मींस दे कैन नॉट रीगेन देयर self life again. So Parkinson's disease is a chronic progressive disease of the nervous system which is characterized by cardinal features of rigidity. Rigidity means hardness. Rigidity means hardness. Then bradykinesia. Bradykinesia means decreased muscle movements or decreased movements of the body. वो hand movements हो सकते हैं, wrist movements हो सकते हैं, feet movement हो सकते हैं, आपकी body के different movements हो सकते हैं जिनकी help से we are moving forward, sitting properly, standing properly, then walking easily. तो ये होते हैं हमारे movements. So bradykinesia means when the patient is not able to move properly, when the movements are very slow. Then tremors and postural instability. Postural instability, tremors हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है tremors हो रहे हैं पेशेंट को, तो postural inability का मतलब है कि patient won't be able to sit properly or maintain the normal posture of the body. तो जैसे normal posture का मतलब है हम जैसे हम बैठते हैं तो बैठने के टाइम पर चेयर पे बैठे हैं तो एक प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, ऐसे इधर उधर नहीं मूव कर रहे हैं. बट जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं, दे कांट सिट प्रॉपरली और दे हैव पोस्चरल इनेबिलिटी. So basically Parkinson's disease is a chronic progressive disease of the nervous system which is characterized by cardinal features of rigidity, bradykinesia, tremors and postural instability. तो ये हमारे डेफिनेशन है पार्किंसंस की. नेक्स्ट आता है आपका etiology. So basically most of the time the neurological systems or neurological disease conditions are idiopathic except for the infectious disease conditions. तो जो infectious disease conditions है, like आपका bacterial infection हो गया, आपका viral infections हो गया, ये आपके इनके अंदर किसी न किसी टाइप के बैक्टीरिया या वायरस का अटैक की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है. बट जो degenerative progressive disease conditions है, they are most of the time idiopathic. Idiopathic means the cause is unknown. So there are two type of Parkinson's disease. One is your idiopathic Parkinsonism and second is your secondary Parkinsonism. So idiopathic means there is unknown causes. क्या causes है? बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से पार्किंसंस हो रहा है, या किसी अदर डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, दैट कंडीशन इज unknown. That condition is unknown. That is known as your idiopathic Parkinsonism. Then second आता है आपका secondary Parkinsonism. It results from number of unidentifiable causes like वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं. ड्रग्स मीन्स जो नॉर्मल जो ड्रग डिपेंडेंस के लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा हेरोइन या कोकेन यूज करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कंडीशंस का जो मेडिसिन भी हम प्रोवाइड, वो भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती हैं. देन ट्यूमर्स भी अगर किसी को है तो दैट process can leads to Parkinson's. So basically Parkinson disease is of two types,
Idiopathic Parkinsonism and secondary Parkinsonism. Idiopathic means the causes are unknown, and secondary Parkinsonism may includes the causes of viral infection, bacterial infection, toxins, drugs, tumors, any surgery, any injury to the brain. So these are the etiological factors. Then next आता है आपका पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रेन जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन डेवलप हो रही है. सो देयर इज ड्यू टू द कॉजेज क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्यूमर्स हैं, ड्रग्स हैं, या फिर टॉक्सिन्स हैं, ब्रेन के अंदर टॉक्सिन फॉर्मेशन हो रहा है. कोई भी कॉज की वजह से क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा डीजनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स. डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स मतलब the neurons which are forming or which are secreting the dopamine, and dopamine is the happy hormone, and dopamine is the neurotransmitter जो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए और ब्रेन की नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज होता है. सो बेसिकली ड्यू टू द causes can be toxins, causes can be tumors, cause can be बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डीजनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, डीजनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से सपोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है किसी पेशेंट को. अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक जगह पर तो वो रुकेगा नहीं, वो आगे आगे प्रोग्रेस करता जाएगा. इफ द डिजीज कंडीशन इज अननोन और इफ द डिजीज कंडीशन इज बीइंग अनट्रीटेड, लेफ्ट अनट्रीटेड, तो क्या होगा, from one part to another part it will lead, from second part to next part it will lead. तो ऐसे करके इन्फेक्शन जो है वो आगे 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 प्रोग्रेस करता चला जाएगा. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन्स डोपामिन को सेक्रेट करते हैं उनका डीजनरेशन, उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है. That will leads to loss of melanin containing neurons which produces characteristic changes in the depigmentation. तो मेलानिन क्या होता है, मेलानिन हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन में हेल्प करता है. पिगमेंटेशन मतलब हमारी बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है. कलर इन द सेंस, अगर जो कलर मीन्स कॉम्प्लेक्शन, हमारी बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है मेलानिन. एंड डोपामिन क्या करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखता है. डोपामिन मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, एंड मेलानिन क्या करता है, प्रोवाइड्स कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोवाइड द कलर टू द ह्यूमन बॉडी. अब जिन लोगों का डस्की शेड होता है वो उन लोगों को ज्यादा बोला जाता है कि आप डिजीज कंडीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट एक्चुअली ये उल्टा होता है. जो लोग डस्की शेड में होते हैं उन लोगों के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छा होता है. एंड मेलानिन क्या करता है, मेलानिन हमारी बॉडी को, मेलानिन हमारे स्किन को जो हार्मफुल सन रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है. This is the function of melanin. So once there is degeneration of dopaminergic neurons, that will leads to loss of melanin containing neurons. यानी कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एक बार डैमेज होंगे वो अफेक्ट करेंगे आपके मेलानिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स को. और मेलानिन क्या काम करता है, इट प्रोवाइड्स द पिगमेंटेशन टू द बॉडी विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन बॉडीज. एंटीजन बॉडीज का मतलब सॉरी नॉट एंटीजन बॉडी, ल्यूई बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूई बॉडीज, LEWI, ल्यूई बॉडीज. ल्यूई बॉडीज क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं मेलानिन सेल्स. मेलानिन सेल्स का फेगोसाइटोसिस होना शुरू हो जाता है, मेलानिन सेल्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है. तो वो डैमेज जब शुरू होगा, डैमेज के बाद में जो डेड बॉडीज बचेंगी, दैट बॉडीज आर नोन एज ल्यूई बॉडीज. समझ आ गया पार्किंसंस में क्या हो रहा है. सबसे पहले ड्यू टू द कॉजेज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कॉजेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं जो डोपामिन सेक्रीट करते हैं उनमें डीजनरेशन शुरू हो गया. जब उनके अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाएगा तो उसके ऊपर जो चीज बैलेंस करती है या उसके ऊपर जो चीज डिपेंड करती है उसके अंदर भी प्रोडक्शन कम होगा, उसके अंदर भी अफेक्शन होगा. तो एक बार डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, वो न्यूरॉन्स जो हैं वो मेलानिन प्रोडक्शन करने वाले न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे, वो मेलानिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे. एंड व्हेन देयर इज डैमेज इन द मेलानिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ल्यूई बॉडीज. एंड व्हाट आर ल्यूई बॉडीज? ल्यूई बॉडीज आर नथिंग बट द डैमेज्ड डेब्रिस ऑफ मेलानिन सेल्स. डैमेज्ड डेब्रिस ऑफ मेलानिन सेल्स मतलब जो मेलानिन सेल्स डैमेज हो गई हैं वो ही हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी हो रही है, ब्रेन के अंदर इकट्ठी हो रही है, और वही क्या कहलाती है,
Lewy bodies, which leads to loss of dopamine production in the brain, which leads to akinesis, rigidity and bradykinesia. तो समझ आया? एक बार फिर से बता देती हूँ क्या हो रहा है ना कि ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब सपोज आपके जस्ट फॉर एग्जांपल आप कॉलेज के अंदर हैं, क्लास के अंदर हैं, क्लास के अंदर एक बैक्टीरिया घुस गया या दूसरी क्लास का कोई स्टूडेंट घुस गया है, आप उसको बोल रहे हैं बाहर जाओ, वो बाहर नहीं जा रहा है, आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या होगा? फर्स्ट एंट्री ऑफ द इंडिविजुअल इन योर क्लास, देन डिस्टर्बिंग द क्लास, क्लास को डिस्टर्बेंस हो गया, उसके बाद you are losing your concentration over the lecture, you are losing your concentration over the lecture, इसकी वजह से क्या हो रहा है? You have lost 1 hour, क्योंकि उस बच्चे की वजह से या उस इंडिविजुअल की वजह से इतना सारा डैमेज हो गया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ड्यू टू द बैक्टीरिया ब्रेन के अंदर एंटर किया, उसने डोपामिन के सेल्स को, जो न्यूरॉन्स हैं जो डोपामिन सेक्रीट कर रहे हैं, उनको डैमेज किया। अब जब डोपामिन सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो डोपामिन सेल्स ने बोला मैं अकेले तो डैमेज नहीं होऊंगा, साथ में किसी ना किसी को लेके जाऊंगा, तो उसने क्या किया, जो न्यूरॉन्स हैं, मेलानिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स हैं, उनको भी डैमेज करना शुरू किया। अब जब मेलानिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स डैमेज हुए तो उनकी डेड बॉडीज कहाँ जाएंगी? वो सब ब्रेन में इकट्ठी होंगी, तो वो डेड बॉडीज आर नोन एज ल्यूई बॉडीज, LEWY, ल्यूई बॉडीज, एंड देन इट विल लीड्स टू लॉस ऑफ डोपामिन प्रोडक्शन। अब डोपामिन भी डिक्रीज हो गया एंड आपका मेलानिन भी डिक्रीज हो गया, दैट विल लीड्स टू ब्रेडिकाइनेसिस और रिजिडिटी। तो ये हो रहा है हमारा पार्किंसंस में। तो ड्यू टू डिजीज कंडीशन और ड्यू टू द कॉजेज, इट विल लीड्स टू डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, which leads to loss of melanin containing neurons, which leads to formation of Lewy bodies. Ultimately it will leads to loss of dopamine, which results in akinesis, rigidity and bradykinesia. तो ये हो रहा है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पे। तो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे? इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी इज द मेन हॉलमार्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज। आपका एल्जाइमर्स और पार्किंसंस में यही एक डिफरेंस होता है कि पार्किंसंस में रिजिडिटी होता है और एल्जाइमर्स में एबनॉर्मल एक्सेसिव मूवमेंट्स होते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एल्जाइमर्स एंड पार्किंसोनिज्म। एल्जाइमर्स में एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं और पार्किंसंस में रिजिडिटी हो रही है, यानी कि एल्जाइमर्स कंडीशन में मूवमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं और पार्किंसंस डिजीज में मूवमेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो दिस इज द ओनली हॉलमार्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज, दैट इज रिजिडिटी, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ पैसिव मोशन। रेजिस्टेंस ऑफ पैसिव मोशन मींस व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। जैसे खाना लेना है, खाना खाना है, फिर फेशियल मूवमेंट्स है, फिर आपका चूइंग है, swallowing है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, these are the passive motion, or these are the, you are working on something, that is passive motion. So there is a decrease in the passive motion is known as rigidity. Then second is bradykinesia. Bradykinesia means decreased movement. Akinesia means absence of movement. Akinesia, absence of movement. Bradykinesia means decrease of the movement. So there are decrease in the movements. Muscle movements decrease हो जाएंगे, आपके body movement decrease हो जाएंगे, hand movement decrease हो जाएंगे, facial movements decrease हो जाएंगे, and sometimes the patient would be feeling moon-like face. Moon-like face means abnormal or absent sensation of anything over the face. तो ब्रेडी जब वर्ड आपका जुड़ जाता है किसी भी वर्ड के साथ, तो दैट मीन्स डिक्रीज्ड। ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिपनिया, ब्रेडिकार्डिया, these are decreased things, and tachy means tachycardia, tachykinesia, tachypnea, these are increased. So bradykinesia means decreased movement of the body. So rigidity, bradykinesia. Tremors, it is an involuntary oscillation of the body part. Oscillation means movement. Involuntary movements होने लगते हैं ट्रिमर्स में। जैसे जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना, बहुत ज्यादा सर्दी के टाइम पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो एकदम से ट्रिमर्स होने लगते हैं ना, सर्दी लगती है तो कपकपी होने लगती है, तो दैट इज इनवॉलेंट्री ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मीन्स मूवमेंट। तो पेशेंट को क्या क्या चीजें हो रही है? पेशेंट को रिजिडिटी हो रहा है,
ब्रेडिकाइनेसिया हो रहा है, ट्रिमर्स हो रहे हैं एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी. पोस्चरल इंस्टेबिलिटी मींस ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट. बेस ऑफ सपोर्ट आपका बैकबोन होता है. तो बेस ऑफ सपोर्ट इज योर बैकबोन. ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट दैट इज बैकबोन, इसकी वजह से पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो रही है. इंस्टेबिलिटी में पेशेंट वोंट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, ही कांट सिट प्रॉपरली, ट्रिमर्स होंगे, एक्सेसिव मूवमेंट्स होंगे, रिजिडिटी होगी, कांट वॉक इजीली, टर्न डाउन फंक्शंस नहीं होंगे, फंक्शनल रीच नहीं होगा. फंक्शनल रीच मतलब पेशेंट वोंट बी एबल टू पिक एनीथिंग, कीप एनीथिंग, या वो इजीली अपने हाथ से भी खाना नहीं खा सकते हैं. और हिप मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे, नी मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे, फ्लेक्शन ऑफ द नेक, ट्रंक एंड एवरीथिंग विल बी डिक्रीज. तो ये होगा आपका पोस्चरल इंस्टेबिलिटी के अंदर. देन सेंसेशन, देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन. प्राइमरी लॉस ऑफ सेंसेशन नहीं होगा, बट 50% ऑफ द पेशेंट आर हैविंग पैरेस्थीसिया. पैरेस्थीसिया मींस मसल वीकनेस. ड्यू टू मसल वीकनेस पेशेंट को पेन होगा, नमनेस होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, कोल्डनेस होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा. दीज आर सम काइंड ऑफ सेंसेशंस इन पेशेंट. तो बेसिकली क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे आपके? रिजिडिटी होगा, ब्रेडिकाइनेसिया होगा, ट्रिमर्स होगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगा, गेट एबनॉर्मेलिटी होगा, देन सेंसेशन एबनॉर्मेलिटीज होंगे. सेंसेशन एबनॉर्मेलिटीज में पेशेंट को पैरेस्थीसियाज होंगे, पेन होगा, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, कोल्डनेस, बर्निंग सेंसेशन. तो ये सब पेशेंट को एबनॉर्मल फंक्शंस हो जाएंगे. देन कोग्निटिव फंक्शन एंड बिहेवियरल चेंजेस. कोग्निटिव फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस होगा? कोग्निटिव मतलब हाउ पेशेंट इज थिंकिंग फॉर समथिंग, हाउ पेशेंट इज जजिंग समथिंग. जो भी, जैसे हम एक सिचुएशन आपको दे दिया एग्जाम का, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एग्जाम्स का सिचुएशन है कि एक हफ्ते के बाद आपके फाइनल एग्जाम्स हैं, तो आप अभी क्या जज करते हो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 days का टाइम है और 5 सब्जेक्ट्स हैं. तो हमें उस तरीके, किस तरीके से अपने टाइम टेबल को डिवाइड करना है, किस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड करना है कि हम एग्जाम आते आते अपना पूरा सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस हम लोग कवर कर सके. तो यू आर जजिंग द सिचुएशन एंड बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ योर सिचुएशन यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. तो दैट इज कोग्निटिव फंक्शन. देन हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग. हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे अभी मैं आपको लेक्चर्स पढ़ा रही हूँ, अभी आपको मैं पार्किंसंस पढ़ा रही हूँ. The ability of yours to getting the knowledge from the teacher or from anybody who is teaching you is known as the understanding or perception. How you are perceiving the things. तो ये होता है हमारे cognitive function and behavior. तो basically patient of Parkinsonism have dementia. Dementia means loss of planning, loss of cognitive functions is known as dementia. तो patient को ये सारे symptoms होंगे. उसके बाद में आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. तो हिस्ट्री कलेक्शन में व्हाट वी आर टेकिंग इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में आपका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री, पेशेंट को डाइटरी हिस्ट्री वी हैव टू कलेक्ट. देन पेशेंट का एनी मेडिसिनल हिस्ट्री. मेडिसिनल में भी पेशेंट को कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है, डाइट एलर्जी तो नहीं है, फैमिली के अंदर किसी भी तरीके का कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, या पेशेंट को किसी भी तरीके का हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशंस, मेटाबॉलिक डिजीज कंडीशंस तो नहीं है. So these we have to consider in taking history collection. And while doing physical examination, in neurological examination, we have to maintain the, we have to perform a Glasgow Coma Scale assessment. तो basically Glasgow Coma Scale assessment में क्या होता है कि you have to give stimulus to the patient. Stimulus के according patient react कर रहे हैं या नहीं react कर रहे हैं, उनका orientation for the time person in place is proper is or not, patient conscious है, unconscious है, subconscious है, whether he is reacting towards the stimulus. ये सब चीजें आपने ग्लासगो कोमा स्केल में प्रॉपरली चेक करना है. देन आपको लैब इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं. लैब इन्वेस्टिगेशंस में आप कराएंगे नर्व फंक्शन टेस्ट. पेशेंट का नर्व कंडक्शन टेस्ट होगा. नर्व कंडक्शन टेस्ट में यू हैव टू चेक कि पेशेंट को हम जो भी स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्व कंडक्शन टेस्ट में पेशेंट को चेक करना है कि
जो हम स्टिमुलस पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग पेशेंट रिएक्ट कर रहा है या नहीं रिएक्ट कर रहा है। तो ये सब आएगा हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में आएगा आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्व कंडक्शन टेस्ट, फिर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टू आइडेंटिफाई कि पेशेंट को किसी भी तरीके का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करने हैं। देन उसके बाद में हम पेशेंट को मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट में बेसिकली हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट तो कम देते हैं। जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर फिजियोथेरेपी ज्यादा इंक्लूड होता है। तो फिजियोथेरेपी के अंदर मोटर लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं। मोटर लर्निंग मींस लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेशंस टू डेवलप प्रोसीजरल स्किल्स। देन रैंडम प्रैक्टिस ऑर्डर शुड बी अवॉइडेड। रैंडम प्रैक्टिस ऑर्डर मतलब जो चीजें पेशेंट को नहीं आ रही हैं, याद नहीं आ रही हैं, वो चीजें अवॉइड करनी है। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं कि पेशेंट को बोलना है आप ब्रश कर लो या अपने खुद के कपड़े पहन लो, तो ये पेशेंट ऑलरेडी नोज। तो यही सारी एक्टिविटीज हमने पेशेंट्स को करानी है। इसके अलावा कुछ भी न्यू चीजें पेशेंट की लाइफ में इंक्लूड नहीं करना है। जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में वो पेशेंट रहता है, वो घर है, ऑफिस है या कम्युनिटी है, जो जो भी एरिया है, दैट हैज टू बी क्लटर फ्री। क्लटर फ्री मतलब उनको बिल्कुल क्लीन एंड काम एनवायरनमेंट चाहिए, इधर उधर सामान नहीं पड़ा होना चाहिए। ये सब चीजें यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड इन फैमिली को भी हेल्थ एजुकेशन में इंक्लूड करना है। तो ये आ जाएगा आपका मैनेजमेंट। उसके बाद आते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट। तो बेसिकली नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को क्या क्या चीजें बोल सकते हैं। बैलेंस ट्रेनिंग करा सकते हैं, लोकोमोटर ट्रेनिंग करा सकते हैं। बैलेंस ट्रेनिंग मीन्स क्योंकि पेशेंट की मूवमेंट्स अनस्टेबल हो रही हैं, पेशेंट वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, पेशेंट वोंट बी एबल टू टॉक वॉक प्रॉपरली, उनका गेट एबनॉर्मल हो रहा है, फिर पोस्चर एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं। तो इसके लिए हमने पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग कराना है। बैलेंस ट्रेनिंग मतलब ask the patient to walk and hold the patient slightly, उनको होल्ड करके रखना है टू प्रिवेंट फ्रॉम द फॉल इंजरीज। वाइटल साइंस चेकअप होना है, फिर इनपुट एंड आउटपुट प्रॉपर मेंटेन होना है, देन वेट मेंटेन होना है पेशेंट का, क्योंकि ड्यू टू डिक्रीज्ड मोटिलिटी मोबिलिटी पेशेंट का वेट गेन हो सकता है। तो इसीलिए वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये सब आएगा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका पार्किंसंस डिजीज। अब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ भी इसके अलावा और करना है तो यू कैन नाउ टेल मी, मैं आपको पढ़ा दूंगी। एनीथिंग यू वांट, आप लोग डिस्कस कर लो क्लास में, आपको कुछ और टॉपिक्स अगर पढ़ने हैं तो, क्योंकि अब सारा रिवीजन शुरू हो जाएगा फिर। तो अगर आप खुद से अपने रिवीजन के टॉपिक्स मुझे दे दो तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपको रिवीजन करा दूंगी। स्टूडेंट्स, यस मैम, आप लोग डिसाइड कर लो, अपने ग्रुप में बात कर लो, जो भी टॉपिक्स आपने दोबारा से रिवाइज कराने हैं वो मुझे बता दो, ताकि मैं उनको प्रिपेयर करके आपको दे दूं। कुछ पीपीटीज चाहिए, नोट्स चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट जस्ट लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके।